اسرائیل کا غرور F-35 چکنا چور۔ ایران نے صہیونی فوج کے 3 امریکی اسٹیلتھ طیارے مار گرائے۔ خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جنگی محاذ پر F-35 طیارہ پہلی بار مار گرایا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیاروں کو دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، جوابی حملے میں ایران کی مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایران کی مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں، پوری قوت سے جواب دیا، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسرائیلی وزارت دفاع صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ توطیم، عودہ اور تلنوف کے فضائی اڈے بھی ہدف تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری۔ اسرائیل پر 40 بیلسٹک، 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ 3 اسرائیلی ہلاک، 14 زخمی۔ علاقے حیفا میں دھماکے، معاشی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عمارت کو نقصان، ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں دھماکے، تل ابیب میں سائرن کی آوازیں۔ صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں میں مزید شدت لائیں گے۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ کر دیا۔ اسرائیل ہر دھرمی پر قائم، صہیونی فوج کے ایران کے مختلف شہروں میں حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ اسرائیل کا یمنی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالکریم کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ کے باعث اردن نے فضائی حدود بندی کر دی۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے، تہران میں وسیع پیمانے پر حملے کیے گئے۔ امریکی آشرباد میں اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلسل جارحیت۔ جنگ میں ایران کو غزہ سے پہلی ترجیح پر رکھ لیا۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر نئے حملے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر بمباری۔ بوشہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر آگ لگ گئی۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میں کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں کو حملہ کا نشانہ بنایا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع ایک نئے اور خطرناک موڑ میں جائے گا۔ ایرانی حکام نے خبردار کر دیا، کہا تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے تہران میں متحد ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ کہا، پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت۔ ایرانی صدر پزشکیان نے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی۔ ایران اسرائیل بڑھتی کشیدگی پر ٹرمپ پیوٹن رابطہ۔ دونوں صدور کے درمیان 50 منٹ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا، روس ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات کا
ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने दौरान गुफ्तगू मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राब्ते। तुर्क सदर उर्दवान और ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। उर्दवान ने कहा, इसराइली हमले जौहरी मुज़ाकरात सबोताश करने की कोशिशें। नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर की सऊदी वली अहद से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब अर्दवान का खत्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एटमी तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात है। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका गठजोड़ फिर बेनकाब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमलों में अमरीकी हिमायत का एतराफ़। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल थी। ये सब कुछ अमरीकी सदर और अमरीकी अवाम की हिमायत से मुमकिन हुआ। इसराइल की फतह अमरीका की फतह है। इसराइल के दुश्मन अमरीका के दुश्मन हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। ओमान ने तस्दीक कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली हमलों के दौरान अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात बेमानी हैं। अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है जो हमारे खिलाफ हमला आवर है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमरीका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? भारत की ईरान इसराइल जंग पर दोगली पॉलिसी। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार। SCO की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। भारत का लाताल्लुकी का ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। दीगर रुकन ममालिक को अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इसी तनाज़ुर में SCO के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ईरान ने आबनाए हरमज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा, तेहरान ने आबनाए हरमज़ बंद की तो दुनिया भर में खाम तेल की सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासर होगी। तेल और LNG की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। मिस्र में गजा मार्च के गैर मुल्की शुरका से ज़ालिमाना सलूक। मिस्री पुलिस का मार्च के शुरका पर हमला। गैर मुल्कियों ने गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए मार्च का ऐलान कर रखा था। इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबाह। कहा, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बोले, पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना और बेमिसाल है। मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। मजीद कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर धमकियों पर उतर आए। पेशावर में कन्वेंशन से खिताब में कहा, इस बार हथियारों के साथ डयाला जेल जाएंगे और मज़ाहमत करेंगे। बानी PTI और अहलिया के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। डंडा मारोगे तो डंडा मारेंगे, गोली का हिसाब गोली से होगा। 22 जून को तमाम इज़ला से कारकुनान निकलेंगे।
मुराद अली शाह की विफाक पर लफ्जी गोलाबारी, बजट पास कराने का चैलेंज। कहा सिंध को विफाक से कंट्रोल न करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सोतेलो जैसा सलूक न करें, अपना हक लेकर रहेंगे। विफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, हम बनाएंगे। विफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस न किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया। सखर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया। खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा शाहराह भुट्टो कराची के अवाम के लिए पीपल्स JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में फैसल वाडा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। फैसल वाडा ने मुलाकात की दावत दी, इसलिए हाजिर हुआ। फैसल वाडा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान हम सबके उस्ताद हैं, आगे कैसे चलना है रहनुमाई लेंगे। KP से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएं हम उन्हें कैसे जवाब दें। अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। चेयरमैन FBI अरशद लंगड़ियाल की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना है, सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। अमीर घरानों की तादाद 6,70,000 है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये लोग सालाना 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं, बाकी अदा नहीं करते। बलूचिस्तान के शहर पसनी में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड, गहराई 14 किलोमीटर थी। मरकज़ पसनी के जनूब में 60 किलोमीटर के फासले पर था। बादलों की झड़ी, गर्मी की शदीद लहर में कमी। गुजरात में सबसे ज़्यादा 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, सियालकोट और मरी में बारिश। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर गरज चमक। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में गर्मी का राज। तुर्बत और पसनी में 12-49, जैकबाबाद 48, बहावलनगर 47 रहा। सिब्बी और सखर में 46 रिकॉर्ड। लाहौर 43, इस्लामाबाद और पेशावर 42। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड। KP, पंजाब, इस्लामाबाद में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान।